morning, students. Today I am going to start a new chapter, chapter number 9, The Great Mughals. In this chapter, we will study sources like N.A. Akbari, Taj Mahal, Red Fort and Jama Masjid, and then political and administration of Akbar according to your reduced syllabus. Open page number 142. N.A. Akbari. N.A. Akbari and Akbarnama, written in Persian, the N.A. Akbari Constitution of Akbar is a detailed account of the administration of Emperor Akbar's empire. Akbar के empire की detailed जानकारी N.A. Akbari बताती है, जो Constitution of Akbar कहते हैं N.A. Akbari को. It was written by his court historian Abul Fazl ibn Mubarak. Abul Fazl was the second son of Sheikh Mubarak, who ran a madrasa in Agra. जो आगरा में मदरसा चलाते थे, उनके दूसरे बेटे हैं अबुल फजल. His eldest son was Faizi. Both Faizi and Abul Fazl, दोनों भाई अकबर के कोर्ट में आते थे in about 1575. Both were influential in making Akbar's religious views more liberal. Both the brothers were Sufis, having inherited the liberal principles from their father. अपने फादर से उन्होंने लिबरल प्रिंसिपल्स सीखा है. दे बिकेम 2 of the 9 jewels in Akbar's court. Abul Fazl also led the Mughal army in its Deccan War. The N.A. Akbari एक थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा का, written by Abul Fazl. It deals with different topics. It is divided into 5 books. The first book is about imperial household. The second deals with the emperor's servants, civil and military services. Third book tells us about the imperial administration containing regulations for the executive and judicial department. Fourth book contains information about Hindu philosophy, science, literature and social customs. Fifth book is about sayings of Akbar, जो अकबर कहते थे, his ancestry and the author's autobiography. तो ये जो अकबरनामा की थर्ड वॉल्यूम है N.A. Akbari, जो अबुल फजल ने लिखी है, उसमें 5 डिफरेंट बुक्स आती हैं, 5 डिविजन है बुक्स का. नाउ ओपन पेज नंबर 146. एज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकबर इज इम्पॉर्टेंट. अकबर ओनली 13 years old at the time of his accession. Akbar was crowned the emperor by his guardian Bairam Khan in Punjab while fighting in the second battle of Panipat against Hemu, the Hindu general of Muhammad Adil Shah. Akbar defeated and killed Hemu. Akbar ने हेमू को भी मार गिराया and recovered Delhi and Agra. He conquered Jaunpur and Gwalior as well. As a result, the territory from Kabul to Jaunpur came under his way. तो काबुल से लेके जौनपुर तक का जितना भी पूरा रास्ता था, सब अकबर के अंडर पे आ गया. The Afghan challenge to the Mughals came to an end. For the time being, थोड़े समय के लिए अफगान का चैलेंज आया था मुगल का रूल खत्म हो जाए, बट इट रिस्टोर्ड द मुगल एम्पायर. लेकिन मुगल एम्पायर बचा रहा. इट लेड टू द मोस्ट इनलाइटेंड एंड लिबरल पीरियड इन मिडीवल हिस्ट्री. कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर. अबुल फजल के अकॉर्डिंग अकबर की पॉलिसी जो थी एक्सपेंशन की, वो बहुत ही पीस एंड प्रोस्पेरिटी को लेके थी, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना हो. However, we find Akbar himself declaring a monarch should be ever intent to conquest, otherwise neighbors rise in arms against him. मतलब मोनार्क ऐसा होना चाहिए कॉन्कस के लिए कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से भरा हो, वरना जो हमारे नेबर्स हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे. Therefore, his method of imperial expansion and his judgment of reality forced him to widen the empire. और इस तरीके से एम्पायर बढ़ने लगा. He realized the safety and security of the empire needed expansion and subjugation. राजपूत पॉलिसी. अकबर ने शादी भी करी है एक राजपूत प्रिंसेस से. His initial conquest concluded the conquest of Gondwana. Then Akbar turned towards Rajputana. Rajputs were warlike people and leaders of the Hindus. If Akbar could win their loyalty, राजपूत की लॉयल्टी, राजपूत का विश्वास अकबर जीतना चाहते थे, then he could win their support. He had no trust in his family members and nobles. अकबर को अपने घर के लोगों पे, फैमिली मेंबर्स पे और नोबल्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था. The Afghans were still powerful in certain parts of India. Akbar offered
his hand of friendship. He treated them with respect. He showed religious tolerance towards them. अकबर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया राजपूत के साथ, उनको रिस्पेक्ट दी और रिलीजियस टॉलरेंस जैसा बिहेवियर दिखाया कि वो सारे रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं. He appointed them to high post of trust and responsibility. हाई पोस्ट दिया उन्होंने हिंदूज को. He strengthened the friendship by marriage alliances. मैरिज करके उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को और स्ट्रेंथन करी और मजबूत करी. ही एबॉलिश्ड सर्टेन ऑपरेसिव टैक्सेस लाइक जाजिया, हिंदू पिलग्रिमेज टैक्स. कुछ टैक्सेस लगते थे हिंदू के ऊपर, जैसे हिंदू टेम्पल पे जाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, जाजिया टैक्स देना पड़ेगा, वो सब स्टॉप्ड हो गए. अकॉर्डिंगली राजपूत रूलर ने अकबर की सुप्रीमेसी को सराहाया, एक्सेप्ट किया और अकबर के साथ राजपूत के एक रूलर अपनी डॉटर को, जोधा भाई को, अकबर के साथ शादी होती है. टू द एम्परर वॉज राजा बिहारी मल ऑफ अंबर. राजा बिहारी मल ने अपनी बेटी जोधा भाई को उनके हाथ सौंपा. अदर राजपूत स्टेट्स लाइक बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, राथम्बोर, कलिंजर, ये सब उनके हाथ आ गए अकबर के. द ओनली एक्सेप्शन वॉज महाराणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़, जो मना कर रहे थे. वो फाइट करने के लिए लड़ रहे थे, मतलब लड़ने के लिए तैयार थे. मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे और तभी चित्तौड़ कैप्चर हुआ इन 1567 टू 1568. नेवरदलेस महाराणा प्रताप और उनके बेटे सक्सेसर ऑफ महाराणा उदय प्रताप, इन्होंने कंटिन्यू किया मुगल्स के साथ. फाइनली ही डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. उदय प्रताप तो वापस उनको चित्तौड़ वापस नहीं मिलता है, बट ही रिकवर्ड सम ऑफ हिज फोर्ट्स. लेकिन कुछ फोर्ट्स उदय प्रताप रिकवर कर लेते हैं. अदर कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम राजपुताना. अकबर का अब गुजरात की तरफ अटेंशन था. ही कॉन्कर्ड इट, फॉलोड बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल. बिहार और बंगाल कॉन्कर करने के बाद अब अकबर गुजरात चाहते हैं. द नेक्स्ट एरिया ऑफ अकबर्स एक्सपेंशन वॉज द नॉर्थ वेस्ट. In 1581, Kabul surrendered, followed by the annexation of Kashmir, Sindh, Balochistan and Khandar. In between, he had also conquered Orissa and a part of Khandesh. Unlike the previous rulers, Akbar same kind of government तो रखे थे, but he showed the way to set up a common nationality among the people of his empire. उनकी अथॉरिटी हिमालय से लेके गोदावरी तक गई है, फ्रॉम काबुल से लेके चित्तागोंग तक गई है. तो मतलब काफी बड़ा एम्पायर अकबर का था. अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी. अकबर वॉज बोर्न टू अ सुन्नी फादर एंड शिया मदर. हिज गार्जियन वॉज ऑल्सो अ शिया, जिन्होंने अकबर को पाला. हिज मोस्ट फेमस ट्यूटर अब्दुल लतीफ, पढ़ाया अब्दुल लतीफ ने अकबर को. एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुल-ई-कुल, मतलब पीस विथ ऑल. सब कुछ करो लेकिन शांति रखो, पीस रखो हर जगह, जो हमेशा अकबर चाहते थे और उसी के हिसाब से एक्ट करते थे. ही एबॉलिश्ड द जाजिया टैक्स, जो बहुत बड़ा चेंज था रिलीजियस पॉलिसी में. हिंदूज का उन्होंने मन जीता जाजिया और हिंदू पिलग्रिमेज टैक्स को स्टॉप करा के, जो मुस्लिम रूलर्स ने लगवाया था. ही डिजायर टू अंडरस्टैंड हिज ओन रिलीजन. उनकी इच्छा थी कि वो अपने रिलीजन को अच्छे से समझें. हेंस ही बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी में एक पंच महल है. यू ऑल कैन सी दिस फिगर 9.11. वहाँ पे इन्होंने इबादत खाना बनवाया था. इन द बिगनिंग ओनली मुस्लिम स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट अटेंडेड द डिबेट्स. अकबर ऑल्सो इन्वाइटेड स्कॉलर्स ऑफ अदर फेथ सच एज हिंदूज, जैन्स, क्रिश्चियंस एंड जोरास्ट्रियंस, जिसको पारसीज बोलते हैं. पहले मुस्लिम स्कॉलर्स और प्रीस्ट ही अलाउड थे इस डिबेट को अटेंड करने के लिए, लेकिन बाद में अकबर ने और भी रिलीजन के लोगों को इनवाइट किया. अकबर केम अंडर द लिबरल सूफी डॉक्ट्रिन्स एज एक्सप्लेन्ड बाय शेख मुबारक. इन 1579, अकबर issued the infallibility decree by which Akbar's decision on any religious question should be binding upon all Muslims. This decree was issued to restrict the undue influence of the ulemas, that is Muslim priest, on the people. कुछ मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो अकबर ने इनफेलिबिलिटी डिक्री इशू कराई थी.
अकबर का डिसीजन ही उसमें सब सराहाया जाएगा। और मुस्लिम प्रीस्ट के इन्फ्लुएंस पे आके लोगों के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। In 1582, Akbar tried to bring about a synthesis of all various religion known to him. We all know, children, that Akbar was a religious tolerance ruler. अकबर सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देते थे। अकबर ने यहाँ पे काफ़ी रिलीजन्स को अपने पास रखा है। ही कॉल्ड इट दिन इलाही और तवाहिद इलाही, जिसको कहते हैं डिवाइन मोनोथिज्म। कॉइन्स ऑफ अकबर इन फिगर 9.13 you all can see, and figure 9.12 दिन इलाही पिलर इन इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना में ये पिलर लगा हुआ है। इट वॉज अ सोशल रिलीजियस ऑर्डर प्लान टू ब्रिंग द डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर। डिफरेंट रिलीजन को, डिफरेंट कम्युनिटीज को एक साथ यूनाइट करने के लिए, एक साथ रखने के लिए ये एक ऑर्डर था। इट वॉज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल toleration and consisted of the good features of the religion inquired by the emperor himself. It is believed in one God. तो one God की बात होती है यहाँ पे, and some important हिंदू, जैन, पारसीज डॉक्ट्रीन्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। This order had a few thousand members. इस ऑर्डर पे few thousand members थे। बीरबल was the only courtier to accept it. दिन इलाही perished with Akbar's death. This structure has characteristics of architecture style of all religion. आप इस अगर स्ट्रक्चर को देखें दिन इलाही को, तो इसमें सारे रिलीजन्स को कैरेक्टराइज किया गया है इस पिलर में। बहुत रिमार्केबल आर्किटेक्चर स्टाइल है सारे रिलीजन्स का। एम्परर्स कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड विथ 9। एम्परर के कोर्ट में 9 जेम्स, मतलब 9 लोग हुआ करते थे जिनको नवरत्न कहते हैं। उसमें एक है फैजी, सेकंड इज अबुल फजल, थर्ड इज राजा तोदरमल, राजा रामबन सिंह, मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका, अब्दुल रहीम खान ई खाना, बीरबल, तानसेन एंड फकीर एजियुद्दीन। यू ऑल कैन सी ऑल द पिक्चर्स ऑफ देम। दीज आर द 9 जेम्स जो अकबर के कोर्ट के मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको 9 जेम्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल पीरियड। अकबर के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अकबर्स गवर्नमेंट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड बट एन एनलाइटेंड वन। ही वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट इन सिविल, मिलिट्री, जुडिशियल एंड रिलीजियस मैटर्स। ही वॉज द हेड। ही सुपरवाइज एवरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। वो सारे ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट देखते थे। ही वर्कड हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ही हेल्ड एन ओपन कोर्ट। एक ओपन कोर्ट सिस्टम रखते थे जहां पे वो सारी कंप्लेंट्स को सुनते थे और सॉल्व करते थे। द एम्परर वॉज हेल्प्ड बाय अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वर द प्राइम मिनिस्टर, जिसको वकील कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको दीवान कहते थे, पे मास्टर जनरल मीर बख्शी, एंड चीफ सदर सदर सुदर, एंड द इंपीरियल स्टोर कीपर मिर समन। द वकील हैड अ जनरल कंट्रोल ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। वकील जो होता था, प्राइम मिनिस्टर जो होता था, वो सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता था एंड वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ द एम्परर, और एम्परर का चीफ एडवाइजर हुआ करता था। द दीवान वॉज इन इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। द मीर बख्शी मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मनसबदार। मनसबदार के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था। पेमेंट्स जो हाई ऑफिशियल्स को देना है वो रिकॉर्ड करता था मीर बख्शी। Then the Sadar-e-Sudur looked after religious donations and royal charities. Mir Saman looked after purchase and maintenance of stores and private purchase of imperial family. Imperial family में जितनी भी purchasing होती है, private purchasing या stores को maintain करना, सारे सामान जितने भी purchase हो रहे हैं वो सबको record करने का काम मीर सामन करता था। Next is provincial administration. Akbar set up a well-coordinated system in which the different parts of the empire worked effectively. अकबर ने बहुत अच्छा coordinated system रखा था जिसमें different parts empire के बहुत अच्छा काम करते थे। empire को उसने 15 provinces में divide कर दिया था, जिसको कहते हैं सुभाष। हर province का एक head होता था जिसको कहते हैं गवर्नर, जिसको कहते हैं सूबेदार, जो एक यूजुअली इंपीरियल फैमिली का मेंबर हुआ करता था, या फेथफुल नोबल हम उसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर अकबर विश्वास कर सकते हैं। लाइक द एम्परर, ही वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। एम्परर की तरह गवर्नर भी इंचार्ज रहता था वो सारे डिपार्टमेंट को लेके।
The Subedar was aided means assisted by a number of honest and efficient officers like Diwan, Bakshi, Sadar, Qazi, Kotwal and Mir Bahir and Waka-e-Nawiz. Qazi was the head of the justice. He supervised Qazis in towns and districts. Kotwal looked after the law and order and did police duties. कोतवाल पुलिस ड्यूटीज करता था. मीर बहर जो था वो कस्टम्स का इंचार्ज था, फेरी टैक्सेस एंड पोर्ट ड्यूटीज का. वाका-ई-नाविज रिपोर्ट करता था सारी चीजें अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू द सेंट्रल. प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सारी चीजें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता था. लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. डिस्ट्रिक्ट जिसको सरकार फर्दर डिवाइडेड इनटू अ विलेज, परागनास. फौजदार हेड होता था हर सरकार का, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था उस एरिया का. उसको हेल्प करते थे बाकी ऑफिशियल्स. परागना वॉज हेडेड बाय अ शिकदर, जो फौजदार के फंक्शन का सेम, फौजदार एंड शिकदर सेम होते हैं. ईच विलेज इन अ परागना हैड ऑफिशियल्स. हर विलेज जो परागना में होते हैं सबके ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मुकद्दम, पटवारी एंड चौकीदार, जो वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ विलेज पंचायत. विलेज पंचायत की हेल्प लेके काम करते हैं उस विलेज के लिए. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. द मेन सपोर्ट जो अकबर की गवर्नमेंट का था वो सिविल एंड मिलिट्री था, वॉज द मनसबदारी सिस्टम. मनसब मीन्स रैंक. मनसबदार एक ऑफिशियल होते हैं, मनसबदार एक ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं, हु आउट ऑफ हिज पे हैड टू प्रोवाइड सोल्जर्स टू द मुगल आर्मी. देयर वर 33 ग्रेड्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 10,000. 3 हाईएस्ट ग्रेड्स होते हैं इंपीरियल फैमिली मेंबर्स के लिए. देन दे वर्क डायरेक्टली अंडर द एम्परर. ये जो 3 हाईएस्ट ग्रेड्स होते हैं ये एम्परर के अंडर डायरेक्टली वर्क करते हैं, जिनको प्रमोट किया जाता है या डिग्रेड किया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है एट हिज विल. दे वर पेड इन कैश. इनको कैश दिया जाता है. दे वर ऑफन ट्रांसफर्ड टू वीकन देयर इन्फ्लुएंस इन द पर्टिकुलर एरिया. दे ऑल्सो हैड टू परफॉर्म सिविलियन ड्यूटीज. स्पाइस भी एम्परर ने रखा था. स्पाइस जो होते हैं जो सारी एक्टिविटीज के बारे में एम्परर को इन्फॉर्म करते हैं. बिसाइड्स मनसबदार्स, अकबर की एक परमानेंट आर्मी भी होती थी जिसमें फुट सोल्जर्स होते थे, हॉर्स सोल्जर्स होते हैं, गनर्स, एलिफेंट्स एंड नेवी. कैवलरी जो हॉर्स सोल्जर्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट विंग थे, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट थे, उस आर्मी का पार्ट था. लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. लैंड रेवेन्यू वी ऑल नो द चीफ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम. अकबर स्पेशली इस डिपार्टमेंट को अटेंड करते थे, देखते थे. उसके लिए इन्होंने राजा तोदरमल को लगाया था, जो शेर शाह रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे. एज रेवेन्यू मिनिस्टर सारे लैंड को प्रॉपर्ली मेजर करना, कल्टिवेटेड लैंड को डिवाइड करना 4 डिविजन्स में, पोलज, पारोती, छच्छर एंड बंजर. 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन फिक्स्ड एज लैंड रेवेन्यू विच कैन बी पेबल इन कैश और इन काइंड. लोन्स भी दिया जाता था टू इम्प्रूव प्रोडक्शन. रेवेन्यू कलेक्टर्स वर आस्क्ड टू बी काइंड. रेवेन्यू कलेक्टर्स को बोला जाता था कि वो काइंड रहें, फ्रेंडली रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें. एनुअल सेटलमेंट वॉज लेटर मेड फॉर 10 years. नेक्स्ट इज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. बिफोर द रेन ऑफ अकबर, अकबर के आने के पहले सारे केसेस इस्लामिक लॉ के हिसाब से डिसाइड होते थे. लेकिन जब अकबर आए, अकबर ने जब हिंदू लॉ को इंट्रोड्यूस किया, तो जितने भी केसेस हैं जिसमें हिंदूज का इन्वॉल्वमेंट है तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा. Along with Qazis, there were also Hindu judges. The emperor was the supreme judge. Emperor मतलब अकबर हुए, यही एक supreme judge है जिनका decision final होता है. And the highest court of appeal. Capital punishment was given only by the emperor in extreme cases. Prisoners were well cared in those times. Many features of Akbar's government were continued by his successors. अकबर की गवर्नमेंट के बहुत सारे फीचर्स जो अच्छे थे वो उनके सक्सेसर्स ने कंटिन्यू रखा जब तक लेटर मुगल्स तक. ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई, एज वेल एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेनी फीचर्स. इन्होंने भी अकबर की गवर्नमेंट के फीचर्स को अडॉप्ट किया क्योंकि काफ़ी अच्छे थे, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम. सिंस इंडिया अलाउड ओपन इमिग्रेशन, यूरोपियंस एंड एशियन सच एज इंग्लिश, पोर्टुगीज, चाइनीज, ज्यूज एंड पैरिस स्टार्टेड कमिंग इन. इंडिया में अब सभी तरीके के लोग आने लगे फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर. जब से अकबर आए थे तो बाहर के लोग पोर्टुगीज, चाइनीज, इंग्लिश सब आने लगे इंडिया में और इंडिया में सेटल होने लगे एज ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, मिशनरीज एंड वर्कमैन. बाय द मिड 17th century नंबर ऑफ कॉलोनीज वर देयर इन इंडिया. तो इंडिया में कई कॉलोनीज आ गई.
you all can see the map number 9.5. Turn the page. This map you all can see European settlements India में जहाँ जहाँ हुआ during Mughal Empire. The blue one is British settlement. Triangle is French settlement. Then circle one is Portuguese settlement. Star for Dutch settlement. The Taj Mahal, referred as a UNESCO World Heritage Site in 1983, the Taj Mahal is considered the jewel of Muslim art in India. मुस्लिम आर्ट में ताजमहल को एक तरीके से ज्वेल बोला जाता है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ताजमहल को एक वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. अ ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, पर्शियन, ओटोमन, टर्किश एंड इंडियन स्टाइल देखने को आपको मिलेगा ताजमहल में. इट वॉज डिजाइंड इन वाइट मार्बल बाय उस्ताद अहमद लोहरी. इन 1631 grief stricken Shahjahan ordered the construction of this monument in memory of his beloved third wife मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ऑर्डर किया था इस ताजमहल का कंस्ट्रक्शन के लिए. The large white marble structure stands on a square platform. The tomb is in the center. 4 minarets frame the tomb, one at each corner. Actual graves are at lower level. जो graves है actual वो lower level पे है. Onion shaped dome टॉप पे है विद अ लोटस डिजाइन. 4 smaller domes are its corner. The main dome was originally made of gold. बीच का जो डोम है वो गोल्ड से बना है. The 4 minarets have small domes with a lotus on the top of each. चारों जो pillars हैं उसमें भी small dome लगे हैं with a lotus design on the top. The exterior is decorated. You all can see this figure. बाहर भी डेकोरेट किया गया है ताजमहल के विथ अ पेंट, स्टोन, इनले, कैलीग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट. बाहर जो है स्टोन, बाहर का जो ताजमहल का स्टोन है उसमें पूरा कैलीग्राफी, पूरा लिखा गया है. एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स बनी है, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड और वाइन मोटिव्स. द इनले वर्क इज अ डेकोरेशन ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स. अंदर भी सेमी प्रीशियस स्टोन्स से डेकोरेट किया गया है कैलीग्राफी पैनल्स को. Complex is a set around a large Mughal garden. बीच में ताजमहल है और पूरे अगल बगल मुगल गार्डन है बड़ा सा. There are raised pathway, a marble water tank at the center, avenues of fruit trees साइड से लगी हुई हैं. British changed the landscape into lawns of London. Complex is bounded on 3 sides of serrated red sandstone walls. Complex के साइड में जो लास्ट आउटर वॉल्स होती है तीनों साइड से रेड सैंडस्टोन से सेरेलेटेड किया गया है और वो फोर्ट की वॉल्स हैं. नेक्स्ट इज जामा मस्जिद. जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया इन ओल्ड दिल्ली. वी कैन से जामा मस्जिद एज मस्जिद ई जोहानामा. ऑर्डर्ड बाय एम्परर शाहजहां. कंस्ट्रक्शन began in 1650 and completed this masjid in 1656. 6 years took to complete Jama Masjid. The masjid has 3 gates, 4 towers and 2 high minarets built of strips of red sandstone and white marble. It has 3 domes. Jama Masjid की जो floor है वो floor plan is nearly as same as the Jama Masjid of Fatehpur Sikri. फतेहपुर सिकरी का जो जामा मस्जिद है वो सेम है जामा मस्जिद के दिल्ली वाले फ्लोर से. The courtyard can be reached from the east, north and south by 3 flight of steps. 3 steps है, 3 सीढ़ियाँ हैं. ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड एंड साउथ साइड तीनों साइड से कोर्टयार्ड में पहुंचा जा सकता है. जो रेड सैंडस्टोन से बनी है वो तीनों स्टेप्स. दीज स्टेप्स यूज टू हैव फूड स्टॉल्स. और इन्हीं स्टेप्स में पहले फूड स्टॉल्स, शॉप्स, फूड स्ट्रीट एंटरटेनर्स रहते थे. इन द मॉर्निंग ईस्टर्न साइड जो है मॉस्क का वो बाजार बन जाता है फॉर पोल्ट्री एंड बर्ड्स. द रूफ हैज 3 डोम्स done in alternate strips of black and white marble with the topmost parts in gold. तो जो छत है उसमें 3 domes हैं, alternate strips लगी है black and white marble की. टॉप मोस्ट वाले में गोल्ड से बना है. On either side of the domes are minarets stripped with white marble and red sandstone. Under the dome is a hall. डोम के नीचे हॉल है with 7 arched entrance, all facing west. वेस्ट की तरफ है. Beyond this is the prayer hall with 11 arched entrances. द सेंट्रल आर्क इज अ ह्यूज, बीच का जो आर्क है बहुत बड़ा ह्यूज गेटवे है विथ स्लिम मिनारेट्स इन ईच कॉर्नर.
फ्लोर इज कवर्ड विथ वाइट एंड ब्लैक मार्बल. वाइट एंड ब्लैक मार्बल से पूरा फ्लोर को बनाया गया है टू इमिटेट द मुस्लिम प्रेयर मैट्स. वहाँ पे मुस्लिम अपनी प्रेयर मैट्स लगाते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेड फोर्ट, लाल किला, करेंटली अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री. दिस लार्ज फोर्ट कॉम्प्लेक्स वॉज द रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्परर. पहले लार्ज फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये घर हुआ करता था मुगल एम्परर का फॉर मोर देन 200 years until 1857. Largest monument in Delhi was built, the Red Fort, fortified palace of Shahjahanabad, the capital of Shahjahan. शाहजहां की पहले कैपिटल हुआ करती थी शाहजहांबाद in 1648. Adjacent to it, बाद में सालिमगढ़ फोर्ट built by शेर शाह सूरी, successor Islam शाह सूरी in 1548. तो सालिमगढ़ फोर्ट बन गया. बोथ द फोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिंस 2007. Imperial apartments consist of a row of pavilions connected by a water channel known as the Stream of Paradise. Imperial apartments में एक रो गई है pavilions की जो water channel से connected है, जिसको Stream of Paradise कहते हैं. The palace was planned according to Islamic model. इस पैलेस को उस तरीके से प्लान किया गया इस्लामिक मॉडल के हिसाब से. But each pavilion is a fusion of Timurid, Persian and Hindu tradition. Imperial residence was called Qila-e-Mubarak, जिसको Blessed Fort कहते हैं. शाहजहां ने ऑर्डर किया था इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जब वो डिसाइड करते हैं अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं आगरा से दिल्ली. हेयर अगेन आर्किटेक्ट थे रेड फोर्ट के उस्ताद अहमद लाहौरी. अनलाइक द अदर मुगल फोर्ट्स, रेड फोर्ट सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इसमें सालिमगढ़ फोर्ट भी है इसके अंदर. मार्बल floral decorations and the double dome are examples of later Mughal architecture. Synthesis of European, Persian, Indian art resulted in unique Shahjahani style. शाहजहानी स्टाइल में बनाया गया है यूरोपियन, पर्शियन, इंडियन स्टाइल को मिक्स करके एक्सप्रेशन एंड कलर्स के साथ. The fort was entered by Lahori Gate. लाहौरी गेट से एंट्री होगी and Delhi Gate which are meant for public use. The Khizrabad Gate एम्परर के लिए है. लाहौरी गेट leads to a dome shopping area called चट्टा चौक. तो वो शॉपिंग एरिया लाहौरी गेट से स्टार्ट होता है. मेन स्ट्रक्चर्स इनसाइड द फोर्ट आर लाहौरी गेट. इट वाज नेम्ड सो फार फॉर फेसिंग द सिटी ऑफ लाहौर. लाहौरी गेट नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सिटी ऑफ लाहौर की तरफ फेस करता है वो गेट. दिल्ली गेट है 2 लाइफ साइज्ड एलिफेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द गेट. दिल्ली गेट के दोनों साइड पे बड़ा साइज का एलिफेंट रखा गया है फेसिंग ईच अदर. चट्टा चौक सिल्क, ज्वेलरी एंड अदर आर्टिकल्स यहाँ पे बिकते हैं, तो चट्टा चौक शॉपिंग एरिया है. नौबत खाना, दिस वॉज हाउस ऑफ ड्रम्स. दीवानी आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस. दीवानी खास, द पिकॉक थ्रोन वॉज प्लेस्ड हियर. दीवानी खास में रखा गया पिकॉक थ्रोन. द हॉल वॉज ऑफ वाइट मार्बल inlaid with precious stones. The silver ceiling has now been replaced by wood. Silver ceilings थी पहले, अब wooden ceilings बन गई. An inscription by Amir Khusru, the Persian poet. Amir Khusru का inscription है is over the 2 outer arcs में. 7th is Nahr-e-Behist. Nahr-e-Behist, it was the stream of paradise जो imperial apartments को connect करते हैं. 8th Mumtaz Mahal, 2 southernmost pavilions for women. It now houses the archaeological museum. रंग महल, पैलेस ऑफ कलर्स. रंग महल वहाँ पे है जो पैलेस ऑफ कलर्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एम्परर की वाइफ्स एंड मिस्ट्रेसेस के लिए बना था. खान महल एम्परर का पैलेस है. हमन इंपीरियल बाथ. हीरा महल जो ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया आफ्टर 1857. 13th शाही बुर्ज. शाही बुर्ज एम्परर्स मेन स्टडी रूम है. देन हयात बख्श बाग, लाइफ बिस्टोइंग गार्डन है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फोर्ट की तरफ. प्रिंसेस क्वार्टर जो डिस्ट्रॉयड कर दिया ब्रिटिश ने आफ्टर 1857. On August 15th, every year India's Prime Minister addresses the nation from its rampart to celebrate Independence Day. We all know children कि Independence Day on 15th August हर साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहीं से एड्रेस करते हैं देश को और फ्लैग को पोस्ट करते हैं यहाँ से रेड फोर्ट से. नाउ हियर द चैप्टर इज एंडेड चिल्ड्रन. In the next video, I'll discuss question answers. Thank you.